Good evening, everybody. Bache, I hope you are able to hear my voice clearly. All right. So, Bache, in the previous class, we had already finished up preparation of some common salts and their properties and their uses. हमने जो बच्चे last salt किया था, that was gypsum. Sorry, that was plaster of Paris, which is prepared from gypsum. हमने बच्चे ये सारा जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, यूजर्स थे, वो कर लिए थे. So we are now only left with a very small portion which refers to as water of crystallization. Water of crystallization बच्चे एक छोटा सा टॉपिक है जो बच गया है, वो हमें करना है. Okay, this is a small topic which is left. So we'll be picking this up today and we'll then go on to discuss NCERT back exercises. NCERT में से कुछ जो back exercises के question है वो discuss करेंगे. And if you have any doubts related to the chapter, that also will pick this up today. Okay. So बच्चे section 2.4.4. Okay. Okay, Simran, the phrase degree of ionization means what? It means कि substance कितना breakdown हुआ है. For example, we have done strong acids and weak acids. What are strong acids? हमने कैसे इसको describe किया था? What are strong acids? हमने इसको कैसे describe किया था? Okay. Strong acids क्या होते हैं? Strong acids are acids which completely ionize. Okay, जो completely ionize हो जाती है, which completely break down. तो बच्चे अगर आप weak acid लोगे तो उसकी complete ionization नहीं होगी. So that is referring to degree of ionization. Is that clear? The degree of ionization of strong acid is more in comparison to weak acid. Is that phrase clear now, Simran? Simran, can you hear my voice? Okay, all right. Chalo. So, bache, now we will proceed to section 2.4.4 are crystals of salts. Really dry. Okay. तो बच्चे यहाँ एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.15. बच्चे in this activity, what is being described? Okay, Madhav, I got your question. बच्चे as of now we are in the process of uploading videos on the app. It will take some time. अभी हमने recently batches create किए हैं तो थोड़ा सा time लगेगा. We'll upload our videos on app also. Okay. All right. So when you talk about water of crystallization, तो water of crystallization हम किस में देखते हैं? We see it as loosely bonded water molecules. तो बच्चे if you pick up any crystal, are they really dry? देखो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Are crystals of salts really dry? Okay, so for this activity what we have to do, we have to take crystals of copper sulfate in a dry boiling test tube. कॉपर सल्फेट के हम क्रिस्टल्स लेंगे. ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हमने बच्चे फिर क्या करना है? वी विल हीट इट अप, उसको हीट करेंगे. अब बच्चे व्हेन यू टेक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, इनका जो ओरिजिनल कलर होता है इट इज ब्लू इन कलर. जैसे आप इसको हीट करोगे, ग्रेजुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ड्यू टू हीट एनर्जी दे आर गोइंग टू लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हो जाएगा. एंड बच्चे इट विल इवेपोरेट, water will evaporate and it will condense in the form of water droplets on the cooler surface. Okay, it will condense in the form of water droplets on the cooler surface.
अब अच्छा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वाटर तो निकल ही रहा है, आपके जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं विच वर ब्लू इन कलर, दे विल टर्न व्हाइट. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू टर्न व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर के हो जाएंगे. ऑलराइट. जब बचे पूरा जो आपका सॉल्ट है जो आपने लिया है, इट टर्न्स व्हाइट, वेट फॉर सम टाइम 1 or 2 minutes, लेट द टेस्ट ट्यूब कूल डाउन. उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल पुट वाटर ड्रॉपलेट्स. आप क्या करोगे, यू विल पुट 2 to 3 drops ऑफ वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब. जिस सैंपल को आपने हीट किया था उसमें 2 to 3 drops वाटर आप क्या करोगे, सैंपल में डालोगे. तो बच्चे व्हाट विल यू ऑब्जर्व अगेन, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सॉल्ट, जो कॉपर सल्फेट व्हाइट हो गया, सॉल्ट के फॉर्म में आ गया था, वो अगेन ब्लू क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू क्रिस्टल्स. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने क्या किया, what we have done, we have taken copper sulfate crystals, so it is CuSO4. okay, just let me change the color. okay, CuSO4 dot 5H2O. okay, this is the salt, hydrated salt that we have taken. अब बच्चे its common name is blue vitriol. इसका common name क्या है, common name is blue vitriol. okay, it is blue vitriol. what is its chemical name, बच्चे chemical name आपको इसके water of crystallization के बेस पे लिखना है. so it will be as copper sulfate, it will be known as copper sulfate pentahydrate. copper sulfate pentahydrate. But what do we understand by the term pentahydrate? Penta means 5. So in this salt, crystals of copper sulfate, we are observing 5 water molecules which are attached to copper sulfate molecules. तो इसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. कॉमन नेम इज ब्लू विट्रियोल. अब अच्छा, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हीट इट अप. अब आप इसको क्या करोगे, इसको हीट करोगे. अब अच्छा, जब आप इसको हीट करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट इज गोइंग टू लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऑलराइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या करेगा, लूज करेगा. ऑलराइट, water of crystallization lose करेगा and it is going to turn to white powder, CuSO4 plus 5H2O. it will lose its water of crystallization. ये अपना water of crystallization क्या करेगा, lose कर जाएगा. अब अच्छा, this salt is copper sulfate. ये common copper sulfate salt है. और बच्चे इसका कलर क्या है, it is white in color. it is white in color. तो यहां कलर चेंज हो रहा है. ओके, दिस कॉपर सल्फेट 5H2O, it is blue crystals. ये blue crystals हैं, आपने इनको हीट किया, it will lose its water of crystallization. ये अपना water of crystallization क्या करेगा, lose करेगा. ठीक है, and when it loses its water of crystallization, it will turn white in color. अब अच्छा, कैन वी रिवर्स दिस कंडीशन, क्या आप इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो? यस. कैसे, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपका कॉपर सल्फेट पाउडर है CuSO4, व्हाट यू नीड टू डू, you need to just put water molecules back into it. आप इसमें क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, वाटर ड्रॉप्स डालोगे. तो बच्चे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू अटैच अगेन विद CuSO4 and you are going to get CuSO4 dot 5H2O. तो बच्चे again what is going to happen, this white salt, it is going to convert into blue crystals. all right, तो बच्चे water of crystallization is loosely bonded water molecules which can easily be removed by process of heating. तो कई बार इसमें कलर चेंज भी होता है
and once this color change occurs you can reverse this. आप उस पाउडर में क्या करोगे, you will add a few drops of water and the color will change again. All right. अब बच्चे I am going to give you some more examples based on this water of crystallization or hydrated salts. Let's take example of FeSO4 7H2O. FeSO4 dot 7H2O. All right. बच्चे what is this commonly known as? This is commonly known as green vitriol. Okay, it is commonly known as green vitriol. And बच्चे what is its chemical name? It is FeSO4. So it is ferrous sulfate. It is ferrous sulfate heptahydrate. What is this chemically known as? This is known as ferrous sulfate. It is chemically known as ferrous sulfate heptahydrate. All right, this is its chemical name. Okay, this is its chemical name. Okay, अब बच्चे इसका कलर क्या है? What is its color? It is pale green in color. It is pale green crystals. It is pale green crystals. Okay, तो बच्चे आप इसको हीट करोगे. What is going to happen when we heat this up? It is going to turn into ferrous sulfate, FeSO4, plus it is going to lose its water of crystallization. हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था, सेम वही चीज हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग इट हियर. ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां सेम रिएक्शन देख रहे हैं. ओके, so FeSO4 ferrous sulfate salt which is formed. Okay, ferrous sulfate salt जो फॉर्म हुआ है बच्चे, यहां भी कलर चेंज होगा. आपके पास क्रिस्टल थे ग्रीन विट्रियोल के, फेरस सल्फेट के, तो बच्चे होगा क्या, व्हेन इट टर्न टू फेरस सल्फेट पाउडर और सॉल्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा. एंड बच्चे कलर कैसे चेंज होगा, इट वुड बी डर्टी व्हाइट इन कलर. इट इज डर्टी व्हाइट इन कलर. जैसे बच्चे एक तो देखो प्योर व्हाइट कलर होता है. ओके, सिमिलरली क्या मतलब है, similarly what you will observe, we will observe that it is dirty white in color. Okay, बच्चे what do we mean by vitriol? vitriol का क्या मतलब होता है बच्चे, अगर हम इसका इंग्लिश का एडजेक्टिव देखें ना vitriol, तो it means something which is very you can say corrosive. Okay, corrosive होता है. तो vitriol का क्या मतलब है, what do you understand by vitriol? बच्चे vitriol means anything which is salt which is made from sulfuric acid. Okay, it is salt which is made from sulfuric acids. Okay, for example देखो कॉपर सल्फेट है, तो इसका पेरेंट एसिड क्या है, सल्फ्रिक एसिड. फेरस सल्फेट, इसका पेरेंट एसिड क्या है, इसका पेरेंट एसिड क्या है, सल्फ्रिक एसिड. तो इसलिए हम इसको विट्रियोल कहते हैं. ठीक है, इट इज नॉट विट्रोल, इसकी स्पेलिंग में सही कर देता हूं, इट इज विट्रियोल. आई होप मैंने ऊपर सही लिखी हो, राइट, सही लिखी है. ओके, तो फेरस सल्फेट, it is dirty white in color. अब बच्चे can we reverse this reaction? Yes, आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना है. Simply FeSO4 powder, mix water into it, it will combine with 7H2O and it is going to form FeSO4 dot 7H2O. तो बच्चे इसके पेल ग्रीन क्रिस्टल्स बन जाएंगे दोबारा. You will again get pale green crystals of ferrous sulfate heptahydrate. ग्रीन विट्रियोल दोबारा बन जाएगा, ग्रीन क्रिस्टल्स बन जाएंगे पेल ग्रीन. सो यू विल अगेन गेट दी क्रिस्टल्स. ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. ओके, अब बच्चे सेम हमारा जो केस है वॉशिंग सोडा के साथ था. सेम हमारा केस किसके साथ था, वॉशिंग सोडा. ऑलराइट, वॉशिंग सोडा वाज Na2CO3 10H2O. ओके, तो बच्चे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है,
वी हैव टू टेक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट्स डिस्कशन की प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है। बच्चे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे। ओके, वंस बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल हीट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, एंड यू विल गेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। आपको वॉशिंग सोडा बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे, इट विल टर्न इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस CO2। तो बच्चे ये जो आपको ड्राई सोडा मिलेगा और ड्राई सोडा ऐश, इसको हम क्या करेंगे, वी विल मिक्स दिस इन वाटर। हम इसको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे। ऑलराइट, Na2CO3 मिक्स्ड विद वाटर 10H2O, क्या होगा बच्चे, इट इज गोइंग टू क्रिस्टलाइज एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म Na2CO3 डॉट 10H2O। तो बच्चे ये वॉशिंग सोडा बन गया और इसका केमिकल नेम क्या है, इट इज सोडियम कार्बोनेट। इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं, वी विल पिक अप बेकिंग सोडा, वी विल फर्स्ट प्रिपेयर बेकिंग सोडा, देन व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज वी विल हीट इट अप। आप इसको हीट करोगे, once you heat it up, what is going to happen, it is going to get converted into sodium carbonate, water plus CO2। अब अच्छा, ये जो आपको सोडियम कार्बोनेट मिला है, you will mix water into it। आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे, once you mix it in water, what is going to happen, it is going to form washing soda। washing soda कैसे बनेगा, you will get sodium carbonate dot 10H2O। ठीक है बच्चे, is this clear, सबको समझ आ गया ये। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, मोक्षिका शर्मा। सर एक बार ये दोबारा बता दो। All right, बच्चे, I am just going to repeat this in a very simple manner। Okay, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बेकिंग पाउडर बनाना है, सॉरी नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वंस बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा को, व्हाट वी विल डू इज, बेकिंग सोडा को हम क्या करेंगे, वी विल हीट इट अप। आप उसे जब हीट करोगे तो उससे क्या बनेगा, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 मिल गया।
अब बच्चे उस सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, वी विल ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ऐड होंगे, आप उसमें सिंपली वाटर डालो एंड इट विल क्रिस्टलाइज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, Na2CO3 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। ओके, तो बच्चे यहाँ एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है कि कलर्स कैसे फॉर्म होते हैं। बच्चे यू नीड टू रिमेंबर अनीशा, व्हेन यू आर गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर कलर की क्या हो रही है, डिस्पर्जन होती है, लाइट की डिस्पर्जन होती है, उसकी वजह से उसके कलर्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। तो बच्चे एक और हमने एग्जाम्पल किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.2H2O। बच्चे दिस इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O। सो बच्चे दिस इज जिप्सम, इसको आप हीट करोगे, दिस इज जिप्सम। ओके, केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। Okay, it is calcium sulfate dihydrate. Okay, अब आपने इसको हीट किया, it will form CaSO4 dot half H2O plus 3/2 water. बच्चे, can anybody tell me what temperature we have to heat it up? Okay, you have to heat it at 373 Kelvin. आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 373 केल्विन पे हीट करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया टेम्परेचर, आपको इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, उससे ज्यादा आप इसको हीट नहीं कर सकते। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Okay, Akriti says it will burn, Anisha says it will be dry. Okay, एक बच्चा कह रहा है nothing will happen. Okay, but I'll just explain this to you. You heat it at 100 degrees Celsius, तो बच्चे you will get plaster of Paris. This is plaster of Paris, CaSO4 dot half H2O. पर अगर बच्चे आप टेम्परेचर को more than 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, if temperature is more than 100, तो बच्चे it will create problem. How will it create problem? You will get calcium sulfate और पूरा water molecule क्या है, निकल जाएंगे. So you'll simply get CaSO4 and this is not plaster of Paris क्योंकि इसने सारा water molecule क्या किया, लूज कर दिया है. Okay, so more than 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो what is going to happen? You will lose entire water molecules. आप पूरे का पूरा water molecules क्या करोगे, लूज कर दोगे. And once whole water molecules are lost, you will not get plaster of Paris. It will be simply calcium sulfate. And बच्चे, this is known as dead burnt plaster. इसको हम commonly क्या कहते हैं? It is commonly known as dead burnt plaster. और बच्चे इसके अंदर POP वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी. It will not have any property such as POP. ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है. हाँ जी पवनप्रीत. सर. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर आई वाज आस्किंग समथिंग. बोलो. अगर सर हम लोग थर्मामीटर को किसी बहुत मतलब गर्म चीज में डाल दें जिसका टेम्परेचर आई थिंक 200 से भी अबव हो, तो सर उसके साथ क्या होगा? बच्चे, वो तो डिपेंड करता है ना आप कौन सा थर्मामीटर यूज कर रहे हो. ओके सर. अगर देखो आप सिंपल क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो उसकी रेंज तो कम होती है. आप उसे 200 डिग्री में डाल दोगे तो बच्चे हट जाएगा. मर्करी इतनी एक्सपैंड होगी, इट विल बस्ट. ओके, टूट जाएगा. अब इंडस्ट्रियल थर्मामीटर्स जो होते हैं बच्चे, उनकी रेंज जनरली जो है
वो ज्यादा होती है, तो आई थिंक सेफली आप उसको मेजर कर पाओगे। जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज आई थिंक -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, लेबोरेटरी में जो हम थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। इंडस्ट्री वाले थर्मोमीटर्स आजकल जो हम यूज करते हैं बच्चे, उसमें हमारे पास स्पेशल इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं। जैसे बच्चे आजकल हम यूज करते हैं ना कोविड के टाइम्स में लोगों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ऐसे स्पेशल इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, सो दे कैन मेजर हाई टेम्परेचर सेफली। ओके, आई होप पवनप्रीत आंसर जो है वो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप नॉर्मल थर्मोमीटर डाल रहे हो बच्चे, वो तो ऑब्वियसली टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, इट विल बर्स्ट। हाँ जी, जिया पांडा, जिया, जिया पांडे, जिया पांडे। So I was not asking anything. Oh, your hand was up, beta. So that was Thanos, not me. Okay, all right, okay. So बच्चे, when you heat plaster of Paris, जब आप plaster of Paris को heat करोगे, you will get calcium sulfate plus 2 molecules of water. So बच्चे, this calcium sulfate is known as dead burnt plaster. It is of no use. अब बच्चे, why do you think it is called POP, plaster of Paris? Okay, Lakshan is saying why they are saying plaster of Paris. अब उसके पीछे बच्चे रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड नियर पेरिस, और पेरिस में इसका सबसे ज्यादा क्या था, यूसेज हुआ था। ओके, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में बच्चे इसका यूसेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अगर देखें तो इट इज देयरफॉर नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ओके, तो बच्चे दीज आर सम ऑफ द salts which have water of crystallization in your NCERT syllabus. But I'll just quickly go back to your NCERT book, back exercises. Let's see the questions which are given there. उनको एक बार देखते हैं, डिस्कस करते हैं। Let's see. Okay. All right. So बच्चे, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, what is common name? What is name of CaOCl2? इसका कॉमन नेम क्या है? What is its common name? All right, bleaching powder. Dipansh, Kashish, okay. Calcium hypochlorite or calcium oxychloride is its chemical name. बच्चे, its common name is bleaching powder. CaOCl2 common name is bleaching powder. Okay, अगर आप इसका केमिकल नेम देखो, it is calcium oxychloride. एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है हाइपोक्लोराइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, वो भी सही है, हाइपोक्लोराइट। ओके, नेम दी सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। बच्चे, आपको किस सब्सटेंस के साथ आपको रिएक्ट करना है? ओके बच्चे, नॉट क्विक लाइम, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम के साथ रिएक्शन नहीं होगा। आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है कैसे बनेगा? यू विल टेक ड्राई स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, एंड बच्चे एट हीट और यू विल वार्म दिस अप ड्राई, इट शुड बी ड्राई स्लेट लाइम, ड्राई स्लेट लाइम। इसके ऊपर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे एंड इट विल फॉर्म CaOCl2 bleaching powder plus water. Okay, this is the chemical reaction. You have to pass chlorine gas over dry slaked lime, calcium hydroxide, and once this reaction occurs, जब ये reaction होगा, what is going to happen? Once this reaction occurs, you will get calcium oxychloride. This is calcium oxychloride, also commonly known as bleaching powder. All right. Okay, let's see the next question. Name the sodium compound
नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बच्चे डोंट टेक इट लिटरली, हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं होता पानी जो हार्ड है, ओके। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड, बच्चे वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ओके रोजैन अरहम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वॉशिंग सोडा यूज करना है, ठीक है। सचिन चौधरी, आकृति, ओके आकृति सिंह mg, ओके आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज mg, यहाँ सोडियम कंपाउंड पूछा है आकृति, ओके। तो बच्चे और भी अलग अलग मेथड्स हैं, पर जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है वॉशिंग सोडा, दैट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ओके। ऑलराइट, Kashish is asking what is the difference between soft and hard. What do we understand by the term soft and hard water? Hard water का क्या मतलब होता है? What is hard water? Please don't take it literally. Hard water का मतलब है, hard water is something which contains dissolved salts of calcium and magnesium। बच्चे हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं। अब बच्चे उसकी वजह से क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट हार्ड वाटर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप बच्चे हार्ड वाटर में सोप को यूज करने की कोशिश करोगे, सोप विल नॉट फॉर्म लादर और फोम इजिली, एंड अ लॉट ऑफ सोप विल बी वेस्टेड। हार्ड वाटर में क्या होता है बच्चे, सोप विल फॉर्म स्कम, अ प्रेसिपिटेट, इट विल नॉट फॉर्म लादर, झाग नहीं बनेगा, ओके। तो बच्चे ये एक प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर की। अगर आप इसे बॉयलर में यूज करोगे तो उसमें स्केलिंग हो जाएगी, सॉल्ट्स विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दी बॉयलर वॉल्स, तो उससे बॉयलर बर्स्ट हो सकता है। बच्चे दिस इज द रीजन हमारा जो गीजर्स है ना, गीजर के जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स हैं वो 7-8 साल बाद खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें स्केलिंग होनी शुरू हो जाती है। हार्ड वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो उनके अंदर डिपॉजिट होते हैं ऑन हीटिंग, ओके। तो बच्चे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं। इफ इट इज टेम्पररी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन टेम्पररी बाइकार्बोनेट सॉल्ट, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू it is due to bicarbonate salts. It is due to bicarbonate salts of calcium and magnesium. Okay, it is due to bicarbonate salts of calcium and magnesium. And बच्चे these salts they are dissolved in water. They are in aqueous form. ये पानी में dissolved होते हैं। तो बच्चे इनको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका होता है। What we need to do? Temporary hardness में simply हमें क्या करना होता है? Boil the water. Once you boil the water, what is happening? ये जो bicarbonate salts हैं, they get decomposed into carbonates. For example, if you have magnesium bicarbonate, let's say MgHCO3 twice, magnesium bicarbonate. This is source of temporary hardness, and it is dissolved in water, aqueous. तो बच्चे जब आप इसको हीट करोगे, what is going to happen? ये जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट है बच्चे, इट इज गोइंग टू डिकम्पोज एंड फॉर्म कार्बोनेट, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ऑलराइट। और बच्चे ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। इसमें क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग। देखो तो कितना आसान तरीका है। It is a very easy way of removing temporary hardness. All right. पर बच्चे कई बार क्या होता है, you have permanent hardness. आपके permanent hardness होती है। तो बच्चे permanent hardness में क्या है? You have calcium and magnesium sulfate salts. They are the major reason of permanent hardness. तो permanent hardness किसकी वजह से होती है? Sulfate and chloride salts. It is due to sulfate and chloride salts of calcium and magnesium. तो बच्चे problem is sulfate and chloride salts, they are dissolved in water,
ये पानी में डिजोल्व होते हैं, पर बच्चे आप इनको हीट करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो बच्चे इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? हाउ विल वी रिमूव दिस? हम इसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव MgCl2, लेट्स यूज Na2CO3। ओके, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2 होता है, पर हम Na2CO3 लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि बच्चे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो डिसॉल्व हो गया पानी में। तो इससे क्या होगा? इट विल फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। बच्चे दिस इज अगेन प्रेसिपिटेट, इसको फिल्टर करके रिमूव करेंगे। NaCl इज एक्वस, पर बच्चे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, NaCl इज नॉट सो हार्मफुल, उसको भी आप इवेपोरेट करके रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रीट परमानेंट हार्डनेस। ओके, ऑलराइट, ओके। बच्चे सिमरन इज आस्किंग अ क्वेश्चन की व्हाट इज हैवी वाटर, व्हाट इज हैवी वाटर? आई थिंक बच्चे आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो उसमें हैवी वाटर का जिक्र हुआ होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। हैवी वाटर बच्चे, हैवी वाटर इज D2O। व्हाट इज D2O? बच्चे ड्यूट्रियम ऑक्साइड, इट इज ड्यूट्रियम ऑक्साइड। बच्चे इन क्लास 9th आपने एक टर्म पढ़ा होगा आइसोटोप्स, आपने एक आइसोटोप पढ़ा होगा टर्म क्लास 9th में। सो बच्चे हाइड्रोजन हैज 3 isotopes. Hydrogen naturally has 3 isotopes. One is protium, second is deuterium, third is tritium. These are 3 common isotopes of hydrogen. Okay, these are the 3 common isotopes of hydrogen atom. All right. तो बच्चे अगर हम इनका सिंबल लिखें तो कैसे लिखेंगे? दिस इज H11, H11, this is H12, this is H13. So what is happening is बच्चे इन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है बच्चे, all three are isotopes of hydrogen. All 3 are isotopes of hydrogen. बच्चे what are isotopes? Isotopes have same atomic number but different atomic mass. Okay, so these are 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium, tritium. बच्चे protium is most common, it is most common, सबसे ज्यादा और कॉमन कौन सा है? प्रोटियम। तो इसको हम वाटर बोल देते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर तो बच्चे एक तरीके से इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम होना चाहिए डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो बच्चे जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर और DTO, इट इज मेड फ्रॉम ड्यूट्रियम। ये इस आइसोटोप का वाटर है, ड्यूट्रियम का। ओके, दिस इज द रीजन इट इज नोन एज हैवी वाटर। हैवी वाटर क्यों बोल रहे हैं बच्चे? प्रोटियम से देखो इसका मास बढ़ गया, प्रोटियम से जो कॉमन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है उससे बच्चे ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन का मास देखो, इट इज 2, प्रोटियम में 1। तो बच्चे हैवी हो गया ना मास के अकॉर्डिंग, इसलिए उसको हैवी वाटर बोलते हैं। तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड और D2O, इट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, इसको मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। ओके, दैट इज टू एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा sorry, not to absorb extra neutrons but to slow down neutrons. Okay, this is the reason it is known as deuterium oxide. All right, Simran, Anesha, is that clear? क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है? ओके, तो बच्चे ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आना था, ठीक है ना? ऑलराइट, तो बच्चे हमें ये याद रखना है कि जो सबसे कॉमन हम वाटर यूज करते हैं, ऑलराइट, इसको जो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं, ओके, वाटर, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है प्रोटियम। राइट अनेशा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिलीटेड है।
It is deleted. Sources of energy is deleted. Our environment बचा है सिर्फ, उधर से फिजिक्स में सोर्स ऑफ एनर्जी गया एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट चला गया है बच्चे. सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट. यू विल आइदर सबमिट अ राइट अप और प्रोजेक्ट एज योर टीचर डिसाइड्स, उसके बाद उसके बेसिस पे मार्क्स लगेंगे. ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन बैक टू द एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक वापस चलते हैं. What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of reaction. So बच्चे, if we heat sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate HCO3, आप इसको हीट करिए, what is going to happen? It is going to form sodium carbonate water plus CO2. It is going to form Na2CO3 water plus CO2. ठीक है, ये कंपाउंड्स फॉर्म होंगे बच्चे. दिस इज एक्चुअली द कॉमन रिएक्शन. दिस इज द स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. सेकंड स्टेप, सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा बनाया. बेकिंग सोडा को फिर हीट करके वॉश, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट. इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सोडा, ऐश. फिर हम क्या करेंगे, इसको किस में मिक्स करेंगे, वाटर में, एंड देन यू विल गेट वॉशिंग सोडा. ऑलराइट, next question, write an equation to show that reaction between plaster of Paris and water. बच्चे, reaction between plaster of Paris and water, POP and water, how is this reaction occurring? CaSO4 dot half H2O plus by 2 water. बच्चे, can anybody tell me why we are writing this as half water? क्या रियलिटी में कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है? व्हाट इज द रीजन वी आर राइटिंग इट एज हाफ? क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ जी सिमरन. So in reality there cannot be half molecule of water, but in the equation we write it half because 2 molecules of calcium sulfate share 1 water molecule. ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, CaSO4 के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में. तो जब आप उसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला कॉम्पोजिशन में लिखना चाहते हैं तो बच्चे हम उसके साथ हाफ H2O लिख लेते हैं. पर बच्चे लिटरली नहीं लेना कि एक CaSO4 के साथ हाफ H2O जुड़ा होता है. हाफ H2O होता नहीं है. ओके, सो इट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और हाफ हाइड्रेट. आपने इसमें वाटर मिक्स किया, तो व्हेन वाटर मिक्सेस इन दिस 3/2 वाटर, इट इज गोइंग टू फॉर्म CaSO4 dot 2H2O. तो बच्चे दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. एंड बच्चे इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑल्सो जनरेटेड, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक, ओके. एक्सोथर्मिक क्यों है बच्चे? इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन. फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चे, आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को, ये जो जिप्सम बना है, ओके, इट इज नॉट POP, सॉरी, दिस इज जिप्सम. ये जो जिप्सम बना है इसको हम हीट करते हैं और हीटिंग से क्या बनता है, POP. तो बच्चे जिप्सम ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो अगर जिप्सम बनेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू रिलीज हीट ड्यूरिंग इट्स सिंथेसिस. So it is a exothermic reaction. All right. Okay. चलो let's move on. आगे चलते हैं. Okay. Question number 1. A solution turns red, it was blue. बच्चे अगर कोई solution, okay, what is gypsum? दृष्टि question पूछ रही है, what is gypsum? Gypsum is CaSO4 dot 2H2. CaSO4 dot 2H2O. This is gypsum. gypsum को हीट करके बच्चे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1. A solution turns red litmus blue. तो बच्चे इसका मतलब है solution is basic and basic range is above 7. तो बच्चे we will pick 10. We will pick 10. That's absolutely right. उसके बाद a solution reacts with crushed egg shells to give a gas
that turns lime water milky. बच्चे कई बार इस गैस के लिए बोला जाता है टर्म इट as brisk effervescence. As brisk effervescence. What is crushed eggshells? Crushed eggshell क्या होता है? Calcium carbonate. And बच्चे any carbonate salt with acid. आपको acid से react करना पड़ेगा. It will form CaCl2 plus water plus CO2. तो बच्चे गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड. गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ओके, तो बच्चे CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है. और बच्चे मेरा जो ये सोल्यूशन है जो एग क्रश सेल्स के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा, CO2 देगा, that should be HCl. HCl is the correct answer. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 3. 10 ml of a solution, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. बच्चे 10 ml NaOH neutralized by 8 ml HCl. तो बच्चे if you take 20 ml of same solution of NaOH, अब आपने NaOH solution की क्वांटिटी को डबल करना है. तो आपको अब कितना HCl है? 10 requires 8, so 20 will require 16. 10 NaOH, 10 ml NaOH को 8 ml solution HCl है बचे न्यूट्रलाइजेशन के लिए. So if you have 20 ml of same solution, what is going to happen? You just need the double amount, so it would be 16 ml. It would be 16 ml. All right, that is correct. उसके बाद question number 4. बच्चे which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? बच्चे antibiotics, they are used for treatment of bacterial infections. इनको bacterial infections की treatment में use किया जाता है. एनाल्जेसिक क्या होते हैं बच्चे? एनाल्जेसिक रिलीव्स पेन. एंटासिड ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, दे विल हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन. तो हमारा जो आंसर है बच्चे थर्ड है. एंटीसेप्टिक इज समथिंग विच विल प्रिवेंट इन्फेक्शंस, विच प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस इन्फेक्शंस. बच्चे दीज आर सम कॉमन टर्म्स दैट वी यूज विद मेडिसिन्स. इन्हें हम मेडिसिन के साथ यूज करते हैं. एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, एनाल्जेसिक विच रिलीव्स पेन, एंटासिड विच हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, एंटीसेप्टिक विच विल प्रिवेंट इन्फेक्शन. ओके, ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं. राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस. बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ग्रैन्यूल्स, वेरी बेसिक इक्वेशन. जिंक plus H2SO4. बच्चे what is your observation? Metal plus acid, it will give me salt plus hydrogen gas, so it is zinc sulfate plus H2. ठीक है. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2. dilute HCl reacts with magnesium ribbon. so बच्चे HCl plus Mg, what it will form? It will form MgCl2 plus hydrogen. Bachche, how will we balance this equation? Just put a 2 here. Equation is balanced. All right. Third equation, sulfuric acid with aluminium powder. Aluminium powder. Okay. Let's go here. इसको लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी. Aluminium powder is Al plus H2SO4. बच्चे ऑलवेज रिमेंबर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड इज एक्सोथर्मिक, या हीट रिलीज होगी. इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन. कैसे बैलेंस करेंगे इसको? सल्फेट इज 3, एल्यूमिनियम इज 2. तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू बैलेंस सल्फेट. सल्फेट इज 3, सल्फेट बैलेंस्ड. हाइड्रोजन बन गया 3 2s are 6, तो यहाँ 3, एल्यूमिनियम इज 2, Al. ओके, 2Al plus 3H2SO4,
Al2SO4 thrice plus 3H2. This is the reaction. Next is बचे dilute HCl with iron fillings. See, Anisha, when doctor uses plaster of Paris to immobilize fractures, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चे पट्टी बैंडेज पे लगा के वो पानी मिक्स करता है, तो बच्चे वो पानी एब्जॉर्ब करके जिप्सम बन जाता है हार्ड, जिससे आप फ्रैक्चर इमोबिलाइज हो जाता है. सो वंस योर फ्रैक्चर इज हील्ड, उसके बाद डॉक्टर उस प्लास्टर को काट देता है. तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लूज नहीं हो रहे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रिएक्ट कर रहे हैं. यहाँ तो बच्चे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ना. तो डाइल्यूट HCl है, आयरन फिलिंग्स, तो बच्चे HCl प्लस Fe, you will get FeCl3 plus H2. How will you balance? 3 HCl. Okay, just a moment. 3 लगाना है ना, it's 2. So 3 2s are 6. So let me put a 6 here. 3 here, 2 here, 2. So 6 HCl, 2 Fe, 2 FeCl3 plus 3 H2. Ferric chloride. All right. बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इंडाइजेशन करने के लिए हम क्या चीज करते हैं. एंटीबायोटिक समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ये आपने क्लास 9th में व्हाई डू वी फॉल इल में पढ़ा होगा. एंटीबायोटिक 8th में भी है. एनाल्जेसिक इज समथिंग व्हिच हेल्प्स टू रिलीव पेन. एंटासिड व्हिच हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन. ये हमारा आंसर है. एंटीसेप्टिक व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चे. कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज. बच्चे ये हमने डिस्कस भी किया था. अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज दे कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एसिड्स. व्हाई? बच्चे इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. हमने इसकी डेफिनेशन ली थी. एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. Acids are chemical substances which on dissolving in water produce hydrogen ions. तो it is not necessary कि जिस भी केमिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा. आपको ये भी देखना है कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है या नहीं करता. अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है then only you will classify it as acid. तो बच्चे alcohol and glucose on dissolving in water it does not release hydrogen ions. They do not dissociate. तो आप उसे एसिड नहीं बोल सकते. ओके, व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. बच्चे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती. पूर्वा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, तो आयंस नहीं बनेंगे. पर बच्चे रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं. सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन फॉर्म आयंस एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आगे चलते हैं. Question number 8. Okay. Why do acids do not show acidic behavior in absence of water? बच्चे इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी. ऑलराइट, जहां HCl गैस निकली थी, ड्राई HCl गैस, और उसको पास करना था ड्राई लिटमस पेपर पे. तो बच्चे जब आप उसे ड्राई HCl को ड्राई लिटमस पेपर पे पास करोगे, ओके, तो बच्चे क्या होगा, इट विल नॉट चेंज कलर. बच्चे आकृति कंपाउंड्स जो होते हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है. अल्कोहल को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो H+ आयन नहीं छोड़ता. इट विल नॉट फॉर्म H+ आयंस. इट इज अ अल्कोहल. एसिड्स में डिसोसिएशन होकर H+ आयंस बनते हैं. शुगर्स में नहीं बन रहे या अल्कोहल्स में नहीं बन रहे. ये चीज याद रखनी है. ओके, तो बच्चे एसिड्स जो हैं दे विल ओनली शो देयर प्रॉपर्टी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दे फॉर्म H+ आयंस. अदरवाइज दे विल नॉट शो देयर प्रॉपर्टी. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. देयर आर 5 सॉल्यूशंस A B C D E. pH है 4 1 11 7 एंड 9. विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल? तो बच्चे सोल्यूशन D,
which has pH of 7, it is neutral. Which solution is strongly basic? Solution C, 11. It is strongly basic. Which is strongly acidic? Solution B, pH 1. Weakly acidic? Solution 4, pH 4, A. Weakly basic? pH 9. तो ये हो गया बचे E. ये तो बहुत इजी है, pH के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है. ऑल राइट. फिर बचे अरेंज दी pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. मैंने आपको बताया था बचे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस pH. तो यहाँ एक बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर pH की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस आयन कम होंगे. तो दैट सिंपली मीन्स यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. तो बच्चे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है B के अंदर और सबसे कम है C के अंदर. ओके, न्यूट्रल है 7, तो वो तो बीच में आ जाएगा. ऑलराइट. अब बच्चे आप देखो 9 किसका है? 9 इज E. 9 इज E, तो वो यहां आ गया. और वीकली एसिडिक है बच्चे 4. तो ये दिस इज द ऑर्डर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H प्लस आयन. इज दिस क्लियर? कैसे हमने अरेंज किया? ओके. सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगी बच्चे B के अंदर होगी. B हैज मोस्ट, E हैज लेस. ओके. उसके बाद है बच्चे इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स, दे आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B. बच्चे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब्स A एंड B. ऑलराइट. यू विल बी टेकिंग इक्वल लेंथ. आप इक्वल लेंथ लोगे बच्चे. ओके. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स. बच्चे टेस्ट ट्यूब A के अंदर HCl है, टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड है. टेस्ट ट्यूब B हैज एसिटिक एसिड. HCl in test tube A, acetic acid in test tube B. Amount and concentration taken for both acids are same. बच्चे किसमें ज्यादा तेज रिएक्शन होगा? Where will you see more reaction? Test tube A or test tube B? Okay, Purva, you are absolutely right. Because test tube A के अंदर बच्चे HCl है, and HCl is a stronger acid. So you will observe more fizzing or more production of hydrogen in test tube A comparison to test tube B. Test tube B is acetic acid, which is organic acid, and it is weak. Okay, next. Fresh milk has pH of 6. How do you think pH will change as it turns into curd? Explain your answer. बच्चे कर्ड के अंदर नेचुरली क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड. तो बच्चे जब कर्ड बन रहा है तो pH should fall. The pH will decrease below 6. It will become more acidic. pH will decrease. Okay, absolutely right. Arham, you're absolutely right. Question 12. देखो उसी पे बेस्ड है. A milkman adds a very small amount. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. बच्चे व्हाई डू यू थिंक जो मिल्कमैन है वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है? व्हाट इज द यूज? मिल्क को बेक थोड़ी करना है, हम क्यों उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं? बच्चे बेकिंग सोडा इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. ये हमने सॉल्ट्स के अंदर पढ़ा था, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस. बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. तो बच्चे जब आप इसको फ्रेश मिल्क के अंदर ऐड करते हो तो क्या होता है? बेकिंग सोडा जो है लैक्टिक एसिड अगर बनेगा भी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या होगा? आपका जो मिल्क है इट विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मिल्क विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ भी बोला गया है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? इट इज इजी टू आंसर. रीजन क्या है, क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है?
क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा बच्चे लैक्टिक एसिड को बनने नहीं देगा जल्दी। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। बच्चे अगर लूज कंटेनर के अंदर रखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? It is going to absorb water from the atmosphere and it is going to get converted into gypsum. तो बच्चे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाएगा। तो उसको हम कैसे स्टोर करते हैं? इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। बच्चे आपने घर पे भी देखा होगा, जब हम पेंटिंग वगैरह प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आते हैं, अप्लाइंग इट ऑन वॉल्स टू गेट अ स्मूथ फिनिश। ओके, तो बच्चे अगर हम उसको वाटर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे, इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर and it will turn into gypsum, so that will create problem। तो उस चीज से बचने क्या किया जाता है? हम इसे waterproof containers में रखते हैं। Next is what is neutralization reaction? Give 2 examples। बच्चे neutralization is reaction between acid and base to form salt and water। तो बच्चे सबसे common example है NaOH plus HCl, NaCl plus water। You can take another example with sulfuric acid, KOH plus H2SO4, it will give me K2SO4 plus water। तो न्यूट्रलाइजेशन के 2 एग्जांपल्स देने। बच्चे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। बच्चे बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर, इसको हम बेकरीज में यूज करते हैं। ओके, बेकिंग सोडा से फर्दर हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं बाय हीटिंग इट। वॉशिंग सोडा को कहाँ यूज करते हैं बच्चे? सोप, डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, ये लॉन्ड्री पर्पसेस के काम आता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो बच्चे ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से ही है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सो दिस कंक्लूड्स चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चे यहाँ सारे जो बैक एक्सरसाइजेस थी एनसीईआरटी की, एसिड बेसिस सॉल्ट्स इज डन। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इसमें कोई और फर्दर डाउट्स तो नहीं है? ओके, सी अरहाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ कंसंट्रेटेड एसिड, आपने उसे डाइल्यूट कर दिया। बच्चे जब आप उसको डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? उसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की इन दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि आप पानी ऐड करते जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज। तो बच्चे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड तो उतना ही है, पानी बढ़ता जा रहा है, सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है, आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, तो बच्चे पीएच लेवल विल चेंज, इट विल चेंज। डाइल्यूट एसिड का जो पीएच होता है बच्चे कंसंट्रेटेड एसिड के मुकाबले कम होता है। कम बोलना चाहिए मुझे, कंसंट्रेटेड एसिड का पीएच कम होगा, यानी इट इज मोर एसिडिक। अगर आप डाइल्यूट एसिड लोगे तो उसका पीएच ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बचे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है एसिड की इन दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट विल डिक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अरहाम, इज दैट क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो बच्चे दिस कंक्लूड्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑलराइट, आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे कुछ। थ्रू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। इस चैप्टर में से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट एंड रिवाइज इट प्रॉपर्ली। ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।